नमस्त्रियतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. It's indeed a memorable day for the institution. We have with us today Mr. M.P. Punia, Vice Chairman, All India Council for Technical Education, Dr. Manpreet Singh Manna, Director, All India Council for Technical Education, Dr. Ramesh Unikrishnan, he is sitting in the audience. He is Western Regional Officer of All India Council for Technical Education, Dr. M.S. Ghuge, Eastern Regional Officer, All India Council for Technical Education, and Sanjeev Kumar Raut, he is the Chairman of C.V. Raman College of Engineering. It's a very, very good college in Odisha. So we welcome all our guests, and we have also in the stage Revered Swami Ekabratanandaji Maharaj, the Secretary of the entire institution, entire ashram, whose love, prayer and inspiration helps us to drive. We heartily welcome all of them, and I personally interacted with them. They are not only a brilliant professional, but they are really a very noble human being. Our objective of this institution is to produce a very good engineer, excellent engineer, as well as an excellent human being. Our institute is driven by love and inspiration. Now our students will ceremonially welcome our guests. Now I request Dr. Manpreet Singh Manna, Director, All India Council for Technical Education, to speak a few words to our students. We are here because God wanted us to be here today. It was not in our schedule. Whenever we'll go for any tour, there is a complete schedule has to be prepared and has to be approved. Then accordingly we cannot go one step ahead and back from that schedule. But it was not in the schedule, but still we are here because God wanted us to be here. This land pulled us here. The magnetic effect. The moment when we entered in this campus, when we were traveling outside, I could see the roads. I was little afraid where I am taking my senior, my colleagues. I am going in the right place or not. Once we entered in the campus, the vibrations, the positivity, the magnetic pull, it is amazing. It's amazing. Out of which polytechnic institutions like this one, we are having more than 2,000 polytechnic institutions. But the students, what they are doing, what we could see in this last half an hour in your room number 32, it given one more confidence to AICT that yes, what exactly we want from the nation, it is happening. It is happening on the earth, it is happening in India. Your models, your concepts, it's coming in a practical form. I'll tell you one thing practically. There is a real example in my life
In my relative's house, I was sitting. He asked, my washing machine is facing some trouble. I suggested, okay, I'll send my student who's doing MTech thesis with me, in particular in that fuzzy logic only. He may come and identify it. He said, no, please don't send him. If you have any diploma holder, your non-student, please do send him. The reason is very simple. The technical approach, the technical learning, the project learning, the practical learning which comes in your hand can never be feel in my MTech and BTech also. This is a hard fact. And India needs it. That's why we called Make in India, Startup India, Stand Up India. We need, if one MTech passed, minimum 20 diploma holders equivalent we required at the time only, because he can be a startup. He may go for some mission, but 20, the backbone soldiers has to be there, which has to be led this team. So that is your future. Dear students, when I was watching the projects, I could see one amazing concept has been put on the practical form, how we can communicate a person, a Divyang, a person, a blind person cannot sense, cannot listen to you, cannot talk to you. In India, there is an organization which has launched one project for you people. The name of the concept and the competition, that is Start India. You can check from the Google. It's a Bangalore NGO, and very soon you are going to get the invite from the AICT, maybe within a week. What they are asking? They are asking if being a diploma holder or a degree holder or any technical education you are getting, if you can give 1 page or 2 page concept note, how we can make the life easy for our brothers and sisters. Those are Divyang. Those cannot move like we are moving. Those cannot speak as we speak. Those cannot listen as we can listen, to make their life easy. And this is a one wonderful concept I have seen. You have to just put on a paper, you have to submit. I am sure you are going to get a prize of this. You please come forward. Put many more concepts. I just came to know from Swamiji that you could not participate in my Smart India Hackathon. But one thing I am sure, the coding concept we have seen in the first 2 projects when we entered in the room, if these guys could have been come over there to submit their entries for the Smart India Hackathon, one prize you could have been taken from Smart India Hackathon also. Anyhow, it's not end of the day, end of the life, end of the mission, end of the vision. We always be moving. Ram Kishan Mission. These 3 words, I repeat again, Ram Kishan Mission. If you just get the actual meaning of this, the proper definition of this, it itself completes the life, which makes you give the complete manual of the life, how we can live in this life as a human being first. Humanity is at the most priority for each and every living world. Then your professional studies comes in picture. And here in this institution, and today morning I could get the report from my headquarters generated, and it has been reached to right hand here. Deficiencies are there. I am not denying it. Because when we will go through the proper documentation part of the system of the regulator, deficiencies are there. Maybe some lack of labs or laboratories or faculty. But the dedication, the devotion of the management and the students we could see here, I believe this deficiency will never stop your mission and you will be succeeding in your life. So forget it about that. Keep doing your job with the same spirit. We congratulate you for doing this kind of job in this area,
and this area is not an ordinary area. You are taking what kind of energy here, I can understand within the next 1 hour we are going out, we will be missing it. You are staying here, you are getting this energy, you are very lucky than we people. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Manpreet Singh Manna. Kindly bless our students so that they can get the right inspiration to be a noble citizen of India. Now I request Dr. M.P. Monia to speak a few words to our students. माननीय स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भी स्वामी जी प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ। आदरणीय मन्ना साहब, हमारे साथी जो रीजनल ऑफिसर हैं इस एरिया के, गुके जी, डॉक्टर रमेश रावत साहब हमारे साथ उड़ीसा से आए हैं, प्रिय शिक्षकों और विद्यार्थियों, आज एक बड़ी भूल हो जाती है हम लोगों से। अगर कलकत्ता में आके और इस शिक्षा के मंदिर में नहीं आते तो शायद बहुत बड़ा पाप हम लोगों पे लगता। स्वामी जी, आपने हमें बताया है इवन इस कैंपस में आने के बाद ऐसे लग रहा था कि कहीं पैर रखूं या नहीं रखूं, कहीं गंदी तो नहीं हो जाए धरती मेरे पैर से। जिस तरह की सफाई, जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह का वातावरण आप लोगों का देखा, इवन यहाँ पे स्टेज पे आपके टाइम ये लग रहा था कि यार मेरे पैरों की वजह से इतना साफ सुथरा जो है ये आशियाना है, कहीं गंदा तो नहीं हो जाए। बच्चों, आप लोग बधाई के पात्र हैं, सारे शिक्षक यहाँ के बधाई के पात्र हैं। स्वामी जी जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, स्वामी जी हमारे जो साथ में हैं, बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का शिक्षा का मंदिर, और इसका नाम है स्वामी रामकृष्ण शिल्प पीठ। शिल्प का मतलब शिल्पकार, जो विशेष होता है, जो हाथ से कुछ विशेष करने वाला होता है, उसको शिल्पकार कहते हैं। और उनका पीठ है, उनका एक स्थान है जहाँ पे आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आप लोगों को बताऊंगा। एक तो स्वामी जी ने आपकी जो स्ट्रेंथ है, पहले तो खुद की स्ट्रेंथ, ये इंजीनियर है, खुद इंजीनियर है, इनको अपने देश का, दूसरे देशों का भी अनुभव, और ऐसा व्यक्ति आके आपका मेंटर बनता है, आपकी संस्थान को लीड करता है। इससे बड़ा भाग्यशाली जो है कोई बच्चा नहीं होगा जिनको इस तरह के भगवान की फॉर्म में एक मेंटर मिले हैं जो आप लोगों के लिए पूरी तरह से चिंतित है। इवन पिछले 2 दिनों से आप लगातार हमें फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग मेरे संस्थान में आइए, 50 साल पुराना संस्थान है, इस संस्थान को देखिए। इन्होंने आपकी जो सबसे बड़ी ताकत पकड़ी है, ये इनकी एबिलिटी है कि इन्होंने आपकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ अपने आप में ले ली। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक 40 साल का व्यक्ति था और उसके दायां हाथ नहीं था। 40 साल का उम्र का व्यक्ति जिसके दायां हाथ नहीं है, और उस उम्र में उसकी इच्छा हुई कि मैं जूडो सीखूं। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, जिसका एक हाथ दायां हाथ नहीं है, और इच्छा हुई कि मैं जूडो सीखूं। जूडो सीखने के लिए कोच चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए जो उसको ट्रेनिंग दे। वो कोच अपने कोच के पास गया और जाके कहा कि मैं एक हाथ का धनी हूँ, फिर पर मेरे को आप जो है जूडो सिखाइए, जूडो में मेरी महारत होनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा शक्ति है, आप मेरे को ट्रेनिंग दीजिए। कोच मान गए उसकी इस प्रार्थना को। कोच ने उस एक हाथ के धनी को सिर्फ जिसका जो है लेफ्ट हैंड था, उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 2 महीना ट्रेनिंग दिया। और ट्रेनिंग देने के बाद कहा कि अब आप जाइए फील्ड में, अब आप जूडो के कंपटीशन में जाइए। इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आपको हरा पाएगा। ऐसी क्षमता आपके अंदर मैंने देखी और ऐसी क्षमता आपके अंदर मैंने प्रदान की है कि आपको जीवन में कोई नहीं हरा पाएगा। उसको आश्चर्य हुआ कि यार मेरी उम्र भी ज़्यादा है, हाथ भी नहीं है, मैं जीतूंगा कैसे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत से जो है उसने कंपटीशन में जाना शुरू किया।
एक कंपटीशन में गया, 2 में गया, 3 में गया, आश्चर्य की बात कि कोई उसको हरा ही नहीं पा रहा है, हर जगह वो जीत रहा है। थोड़े दिनों बाद वापिस वो अपने कोच के पास गया कि आपने ऐसे मेरे को क्या दांव सिखा दिया जिसकी वजह से कोई नहीं हरा पा रहा है मेरे को। तो कोच ने कहा कि आपको जो मैंने दांव सिखाया है उस दांव को रोकने के लिए जो सामने वाला आपका अपोनेंट है वो तब रोक पाएगा आपका दांव जब वो आपका दायां हाथ पकड़े, क्योंकि आपके दायां हाथ है ही नहीं, दायां हाथ है नहीं तो आपके दांव को वो रोक नहीं पाएगा, और आपके दांव को रोक नहीं पाएगा तो आपको हरा नहीं पाएगा। दुनिया के अंदर कोई भी आपको हराने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो दांव है, दायां हाथ नहीं होने का जो दांव है, वो दांव जो है कोई भी रोक पाने में सक्षम नहीं है। गुरुजी ने जो है, स्वामी जी ने जो आपकी क्षमता यहाँ पे पकड़ी है, आप लोग जिन परिवारों से आए, जो आपका उद्गम है, आप लोग सब बच्चे कठिन परिस्थितियों में पल के आए हैं, और जो इंसान कठिन परिस्थितियों में पलता है उसको जीवन में कोई नहीं रोक पाता, और वो स्ट्रेंथ आपकी गुरुजी ने पकड़ी है और उसी के हिसाब से आपको डायरेक्शन देना शुरू किया। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जीवन में ये मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है, इस मौके को गंवाना मत आप। अपॉर्चुनिटी जीवन में बार बार नहीं आती है, अपॉर्चुनिटीज किसी का वेट भी नहीं करती है। एक लड़का था, वो किसी किसान के घर गया, किसान की बेटी शादी योग्य थी। उस लड़के ने जाके कहा कि आपकी बेटी से मेरे को शादी करना है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। किसान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, पर मैं बेटी का स्वयंवर करूंगा। मेरी कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर आप सफल होगे, मैं जो बात कहता हूं, मेरी जो इस व्यवस्था में मैंने जो ठाना हुआ है, अगर उसमें आप कामयाब होते हो तो मैं मेरी बेटी की शादी आपसे करूंगा। बच्चे ने कहा बताओ आपकी क्या कंडीशन है। तो किसान ने कहा कि मेरे घर के पिछवाड़े में 3 बैल बंधे हुए हैं, बैल जानते हो ना, ओक्स। मेरे घर के पिछवाड़े में 3 बैल बंधे हुए हैं, और तीनों बैलों में से एक एक करके मैं खोलूंगा, किसी एक बैल का आपको पूंछ पकड़ना है। अगर आप बैल का पूंछ पकड़ लेते हो तो मैं मेरी बेटी की शादी आपसे जो है कर दूंगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, यार बैल का पूंछ पकड़ने में क्या दिक्कत है, गांव में तो डेली हम जो है पशुओं के पूंछ पकड़ते हैं, ये तो बड़ी इजी सी स्वयंवर की बहुत इजी सी कंडीशन है, पकड़ लूंगा कोई बात नहीं। किसान और उस लड़के के बीच में समझौता हो गया। किसान घर के पिछवाड़े में गया, जाके एक बैल को खोला, लेकिन बैल बड़ा ताकतवर था, काफी दिनों से बंधा हुआ था। एकदम से जैसे ही खोला बैल को, बहुत ही ज्यादा ताकत से, बहुत ही ज्यादा अनुशासनहीनता करता हुआ बैल कूदता हुआ बाहर की तरफ भाग के आ रहा है लड़के की तरफ। लड़का डर गया कि यार ऐसे बैल के अगर पूंछ के हाथ लगा लिया तो जान ही नहीं बचेगी। स्वयंवर तो तब होंगे जब जान होगी, अगर मान लो जान ही नहीं बची तो स्वयंवर का एक है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी 2 अपॉर्चुनिटी और है, एक ही जा रहा है, ये तो क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे 2 में से किसी का एक बैल का पूंछ पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं, जाने दो। उसने उस बैल को जो है जाने दिया। एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी उसने गंवा दी। किसान वापिस अपने घर के पिछवाड़े में गया, इस बार दूसरे बैल को खोला। इस बार वाला बैल उससे ही ज्यादा अनुशासनहीन, बड़े बड़े उसके सींग, बहुत जोर से आवाजें करते हुए, बहुत ताकत के साथ और गति के साथ दौड़ता हुआ जो है बाहर की तरफ भाग रहा है। अब लड़का इस बार फिर डर गया, ने कहा यार इसमें भी ये सौदा भी जो है कामयाबी वाला सौदा नहीं है, इस बैल के भी पूंछ की तरफ क्या, इसकी तो देखना ही इसकी तरफ जो है हानिकारक है, पूंछ तो पकड़ना दूर की बात है। तो उसने उस बैल को भी जाने दिया। सेकेंड अपॉर्चुनिटी हैज गॉन। पर अभी भी वो खुश था कि शादी तो करनी है, किसान की बेटी से शादी करनी है, बिकॉज तीसरी अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। तीसरा बैल खुलेगा, उसको जकड़ लूंगा मैं, पूंछ क्या पूरे को पकड़ लूंगा। किसान तीसरी बार गया घर के पिछवाड़े में। इस बार जो बैल खोला, बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल कमजोर जो है, इवन चलना भी मुश्किल हो रहा था बैल के लिए।
लड़का मन ही मन खुश हो रहा था, अननेसेसरी रिस्क लेता, उन बड़े बलवान बैलों के अगर हाथ डालता, कुछ न कुछ नस करा लेता। ये तो इतनी इजी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई थी, ये तो चला ही नहीं जा रहा। धीरे धीरे बैल चलते चलते जैसे उसके पास से गुजरने लगा, लड़का कूदा पूंछ पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार इस बैल के पूंछ है ही नहीं, ये बिना पूंछ का। क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? जब अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही थी तब है, उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से इस धरती में, भारत देश में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जैसे संस्कार, जैसी शिक्षा, जैसा शिल्प आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा हमने तो किसी संस्थान में नहीं देखा। अभी मन्ना साहब कह रहे थे ये AICTE जो है 10,500 कॉलेजों को कंट्रोल करती है, और इन 10,500 में से 2,000 नहीं मन्ना साहब 4,000 से ऊपर पॉलिटेक्निक्स है देश के अंदर, जिसको आप लोग गवर्न करते हो। मैंने ऐसी संस्थान जो है नहीं देखी। अपॉर्चुनिटियाँ वेट नहीं करती। आपके पास मान लो रेलवे का टिकट है, 6 बजे ट्रेन है, आपके पास रिजर्वेशन है 6 बजे का, आप 6:30 बजे स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन मास्टर को जाके कहते हैं कि बैठाओ मेरे को डिब्बे में, मेरे पास रिजर्वेशन का टिकट है। वो ट्रेन तो 6 बजे चली गई, आपका वेट थोड़ी करती है। समय जो है निकल गया, समय वापस नहीं मुड़ता, अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है बच्चों। तीसरा कंपोनेंट जो है, तीसरा कंपोनेंट आप लोगों के लिए जो मैसेज है, अच्छे मानव का, अच्छे इंसान का। इस धरती के ऊपर अच्छे इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो झलक आप लोगों में हमें दिख रही है, वो स्पार्क आप लोगों में दिख रहा है। हमें ऐसे इंसान बनना है। अभी एक हैदराबाद का केस था, हैदराबाद में एक लड़कियों का रेसिंग का कंपटीशन था। 5 लड़कियों को एक रेस दौड़नी थी, 200 मीटर की रेस थी। सच्ची घटना है ये, हैदराबाद की सच्ची घटना है पिछले दिनों की। 500 लड़कियों ने दौड़ना शुरू किया, और सबका टारगेट क्या होता है रेस में कि मैं जीतूं। यही होता है, दौड़ तो इसी चीज की होती है कि मैं जीतूं। जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, थोड़ी दूर चलने के बाद, थोड़ी दूर दौड़ने के बाद एक बच्ची गिर गई उन 5 में से। 5 में से एक बच्ची गिर गई, चारों जो है थोड़ी आगे निकली, पर उनको एकदम से पता चला कि हमारी जो साथी थी एक 5वीं, वो गिर गई है। तो अपने टारगेट की तरफ नहीं गई चारों बच्चियां, जो 200 मीटर का डेस्टिनेशन जो टारगेट था उनका, उसकी तरफ नहीं गई। उन बच्चियों ने वापस, चारों बच्चियां वापस मुड़ी, वापस मुड़ के उस बच्ची के पास आई जो गिरी हुई थी। उसको पूछा क्या हुआ, ज्यादा चोट लग गई क्या, क्या चल नहीं पा रही हो, क्या दिक्कत आ रही है? उस बच्ची ने कहा नहीं, मैं चलने में सक्षम नहीं हूं। उन चारों बच्चियों ने उस लड़की जो गिरी हुई थी, उस बच्ची को अपने हाथों में उठाया, और उस हाथों में उठा के चारों लड़कियां उस एक गिरी हुई लड़की को जो जमीन पे गिर गई उसको साथ लेके चल रही हैं, और पांचों की पांचों जो उनका डेस्टिनेशन था उसके ऊपर एक साथ पहुंची। कौन जीता? कौन जीता? पांचों जीते, पांचों जीते, पांचों विजयी हुए। लेकिन इस कहानी का जो है सबसे बड़ा कष्टदायी पहलू जो है, वो पांचों लड़कियां मेंटली रिटार्डेड थी। वो बच्चियां मानसिक रूप से कमजोर बच्चियां थी। अगर आप जैसा, हमारे जैसा बच्चा होता तो क्या सोचता? यार एक गिर गई, चलो कंपटीशन कम हुआ, अब 4 के अंदर ही कंपटीशन है, एक और गिर जाए तो और कंपटीशन कम होगा। लेकिन उनके अंदर जो भावनाएं हैं, इवन मेंटली रिटार्डेड बच्चों के अंदर भावनाएं हैं, आपस में एक साथ जुड़ के एक साथ मूव होने की जो भावनाएं हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हमें ऐसी बच्चियों से सीखना चाहिए, न कि बहुत बुद्धिमान लोगों से। बुद्धिमान लोग, बहुत बुद्धिमान लोग किसी के साथ ऐसे टीमें नहीं बनाते हैं। ऐसे बच्चों से अपने को सीखना है जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आपके एक्ट से जीवन का एक उद्देश्य बनाना है आप लोगों को। आपके काम की वजह से, आपकी बात की वजह से किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान के आंखों में आंसू नहीं आने हैं। ऐसा काम नहीं करें कभी, या ऐसी बात नहीं कहें किसी को जिसकी वजह से दूसरे को कष्ट हो और दूसरे की आंखों में आंसू आए। ऐसे इंसान मत बनना आप लोग। इस शिक्षा के मंदिर में आने के बाद, ऐसे गुरुओं के बीच में आने के बाद, ऐसे शिल्पकारों के बीच में आने के बाद हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम आप लोगों के हमेशा साथ में हैं। एक 6 महीने बाद हम यही ऑफिसर जो आए हैं आपके पास, हम वापिस आएंगे आपके पास।
ये फरवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है। हम लोग 8वें महीने में अगस्त के अंदर आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन जो जिम्मेवारी मैं देके जा रहा हूं आप लोगों को, जितना आपका हैंड्स ऑन पार्ट देखा, जितने आपके आइडियाज देखे, वो सारे के सारे आइडियाज जो हैं इस कैंपस के अंदर इंप्लीमेंट हुए होने चाहिए। चाहे वो एनर्जी सेविंग का था, चाहे वो स्मार्टनेस का था कैंपस का, चाहे किसी डिसेबल्ड को हेल्प करने का था। ये कैंपस तो स्मार्ट हो, अपन कैंपस स्मार्ट हो गए, हम खुद स्मार्ट हो गए, आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्मार्ट हो गई, दूसरे कॉलेजेस स्मार्ट हो गए, तो कलकत्ता अपने आप स्मार्ट हो जाएगा ना। सो स्मार्टनेस सबसे पहले जो स्वामी रामकृष्ण मिशन का जो ये इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा स्मार्टनेस यहाँ पे दिखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका उज्जवल भविष्य हो, आप के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सके और प्राउड से कह सके कि हम भी भारत देश में ऐसे इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. M.P. Punia, for your inspiring message. It's a really great day for the institution, and our students are really blessed to have these two noble professionals with us and their valuable message. Now I request Dr. Punia to finish his tea. Meanwhile, our student will sing a Vedic hymn.
of inauguration. আলোগুলো জ্বালান, আলোগুলো switch on the light, switch on the light. আর কি নেক্সট প্রজেক্ট? হ্যাঁ বলছি आ रहा है, वेलकम आ रहा है क्या? देखो साफ लिखा हुआ। हाँ सर आ रहा है? Then they have a radar. Hey, Johnson, radar. यहाँ पर HS 048 और 8 मेगा 328 है और एक 16x2 LCD। हम लोग क्या किया 8 मेगा 328 से इस तरह का LCD इंटरफेस ओके, डायरेक्शन उस हिसाब से जो होते हैं। तो इसका 3D मूवमेंट आपको इसकी मूवमेंट कितने डिग्री एंगल तक की है? and then you drive it. Start it, hall open it up. कुछ ना small compression will be having. Here you have pressure and then mechanical now But there is some air injection. It is not proper. Air injection. That is why it is not working properly. There is some sponge. water here and water there also. I want to lift the launch from here. Entire launch. So in this mechanism, launch will come here. Here. Here the launch will come here. Then while it's rotating, this will continuously remain horizontal. Right? No, launch will remain horizontal, and while it comes here, it will remain horizontal, it will go and again directly. This is available in YouTube. It's a implemented technology in Scotland. and no energy is required here. Energy is required. You have to rotate this in here. Rotation you need this energy. This is in here. 8, 9, 8, 1, এটা আঙুলের সাথে একটা ছোট আমরা যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটা আমরা যে কোনো সময় ফর্মুলে বলে দিতে পারি এটা খুবই ইজি একটা ব্যাপার এই ফর্মুলা কোডে আমরা এদিকে যে লাইন অবধি আমি যদি বলি তো এটা হচ্ছে মানে আপনি আপনার বাড়ির লাইট পাখা যে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক্যাল মানে জিনিসপত্র আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি
অ্যাক্সেস করতে পারবেন। অ্যাক্সেস মানে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আসলে। মানে এখানে মোট এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তিনটে লাইন আছে, একটা ফ্যান আছে, তো টোটাল 4টে হয়। আমরা একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান বানিয়েছি যার নাম আমরা দিচ্ছি অটোমেটিক। এখানে এখন সবকটা যদি অন স্ক্রিনে আছে, আমি আপনাকে মোবাইলটা দিচ্ছি, আপনি মোবাইলটা বানাচ্ছি আমরা এতে। আচ্ছা আপনি বলুন, আপনি কি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের না? আমি গুগলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। গুগলে ফায়ারবেস বলে একটা ডাটাবেস সিস্টেম আছে। ফায়ারবেসেতে আমরা এই ডাটাবেসের পোস্টিংটাকে করেছি এবং এখানে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আসলে একটা ওয়াইফাই মডিউল। মানে আপনার বাড়িতে একটা হটস্পট আছে বা ওয়াইফাই আছে বা কিংবা কোনো রাউটার আছে,